ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ +1 ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਨੇ: ਸਰਕਲਸ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਐਲਿਪਸ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰਕਲਸ। ਓਕੇ, ਸਰਕਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ। ਸਰਕਲਸ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਲੋਕਸ। ਲੋਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਥ। ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਟਰੇਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਰਹੇ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ H, K ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਠਾ X, Y, ਜਿਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੋਂ R, ਜਿਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ R। ਠੀਕ ਹੈ, X, Y ਦਾ ਪਾਥ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ H, K ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ R ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਲਾਏਗਾ? ਸਰਕਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ X, Y ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ H, K ਦਾ X, Y ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਕ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਸ ਦੇ ਟਿਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ H, K 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ R ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਲੋਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰਕਲ। ਤਾਂ ਲੋਕਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ is always at a constant distance from a fixed point. Constant distance from a fixed point is called circle. ठीक है, एक फिक्सड पॉइंट तो जो किसी वेरीएबल पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा आप की रखते हैं कॉन्सटेंट, तो उन्होंने की कहा जाता है? सर्कल। ठीक है, तो इसी कंसैप्ट तो आप देखते हैं कि इक्वेशन किमें लिखी दी है सर्कल की। इक्वेशन अगर लिखनी हो तो आप देखा कि एक वेरीएबल पॉइंट X, Y, एक फिक्स पॉइंट H, K तो दोनों का डिस्टेंस हमेशा की रहता R। बस इसी कंडीशन को तुम मैथमैटिक्स के प्लॉट कर दो तो आंसर की आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ਹੁਣ X, Y ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ H, K ਤੋਂ ਅਗਰ R ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? X - H ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ Y - K ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ R। ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? X - H ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ Y - K ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ R ਸਕੁਅਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, H ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ? H, K ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ R ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ X - H ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ Y - K ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ R ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ 2, 3 ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 4। ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੈ X - H ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ Y - K ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ R ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? 2, K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3 ਅਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 4। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? X - 2 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ प्लस Y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। ये की बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, हुण अगर इसे कंसैप्ट के विच मैनूं कहा जाए कि एक सर्कल है जिहदा सेंटर कित्थे है? ओरिजिन ते उहदा रेडियस कितना है? 2। उहदी इक्वेशन लिखो तो मैं की लिखूँगा? X - 0 होल स्क्वायर प्लस Y - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यानी कि X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो जो इस तरह का सर्कल मिलेगा आपको, वह सेंटर हमेशा कितने होएगा? 0, 0 ते रेडियस होएगा जो RHS गिवन होएगी आपको अंडर। ठीक है, बट अगर आपको इस फॉर्म के सर्कल मिलता मतलब वह सेंटर आप शिफ्ट करके किसी होर जगह पर ले जा चुके हैं। जिमें इस केस के आप 2, 3 सी रेडियस में आप की रखा सेम। ठीक है, मतलब एक पॉइंट तो सर्कल जो इत्थे सी इनू आप उठा के इहदा सेंटर कित्थे ले चुके हैं? 2, 3 तो सर्कल हम इस पॉइंट पर जाके बन चुके हैं। ठीक है, तो ये आप कहते स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। दोबारा फिर X - H होल स्क्वायर प्लस Y - K होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ x ਮਾਈਨਸ h ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y ਮਾਈਨਸ k ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਜਦੋਂ h ਕੋਮਾ k ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ a ਮਾਈਨਸ b ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਟਰਮ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2hx ਪਲਸ h ਸਕੁਅਰ यानी कि एक x की टर्म आएगी, सिमिलरली इतने y स्क्वायर की टर्म आएगी, एक y की आएगी तो कुछ की होंगे कॉन्स्टेंट्स। हुण इन्हां दे जिहड़े कोफिशिएंट्स होणगे सारिਆਂ ਦੇ ਉਹ डिपेंड करनगे कि सेंटर की वैल्यू कितनी है, h कॉमा k कितना तो रेडियस की है, ठीक है, r की है, वो ते डिपेंड करनगे। तो अगर आप हर एक सर्कल के लिए इनू की करना हो जनरलाइज करना हो तो जनरलाइज करके आप लिख दें। आप अगर देखिए तो इतने हमेशा एक एक्स स्क्वेयर आऊगा, इतने वाई स्क्वेयर आऊगा, तो एक्स स्क्वेयर तो वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एक्स स्क्वेयर आएगा तो वाई स्क्वेयर आएगा, ठीक है। प्लस जिहड़ा एक्स का कोफिशिएंट होएगा वो वेरी करूगा एच से, क्योंकि इतने की आना माइनस 2hx, तो उन्होंने आप लिख दें 2gx। सिमिलरली वाई के कोफिशिएंट को आप लिख दें 2fy, तो कॉन्स्टेंट को आप कह दें c। एक ही बन जाती है जनरलाइज्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। पहली इक्वेशन जी आप इतने देखी, सैकेंड इक्वेशन जी आप इतने बनाई। इसे ही इक्वेशन लिखने का एक नवा तरीका, एक डिफरेंट तरीका कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2g तो 2f क्यों लिखा ये तो हौली हौली क्लीयर हो जाएगा। इनू याद करना सौखा, ये इंफॉर्मेशन प्लॉट करनी, इंफॉर्मेशन गेन करनी की है ज़्यादा सौखी है, इस करके आप लिखा, ठीक है। ਹੁਣ अगर आपको कि पूछा जाए मैंने कोई सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म के देगा तो मैनू कहेगा कि भाई इसका सेंटर तो रेडियस दसो कितना आएगा। तो सेंटर एंड रेडियस पता करने के लिए आप करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा जहा रिफॉर्म करते हैं। प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसैप्ट से जाओ तो देखो कि किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक जो अपने को एक सैकेंड डिग्री तो एक 1 डिग्री टर्म गिवन हो तो उन्होंने परफेक्ट स्क्वायर किमें बनाईदा। आप की करते सी एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके यानी कि जी वह स्क्वायर की करते हैं ऐड सबट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। उस तरह वाई के लिए भी आप यही चीज़ करा प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। एक ही बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx, मतलब एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy, यानी कि वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर। बचा कि इतने माइनस जी स्क्वायर, उधर जाके की बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, वो की बन जाएगा प्लस एफ स्क्वायर, तो प्लस सी सी जो की बन जाएगा माइनस सी। तो हुण अगर तुसीं इहनूं ध्यान नाल देखोगे तो ये इक्वेशन है जी वो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर के नाल कंपेयर की जा सकती है, जितों आपां नूं एच की वैल्यू कितनी मिलूगी माइनस जी, के की वैल्यू कितनी मिलूगी माइनस एफ, तो रेडियस की वैल्यू कितनी मिलेगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर, ठीक है। तो अगर मैनू इस इक्वेशन के विचों सेंटर एंड रेडियस पूछा जाएगा तो आप वो भी प्लॉट कर लिया कि सेंटर कितना होएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो रेडियस कितना आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं आप। मान लो कि मेरे को एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैनू क्या चाहूँगा कि पता करो कि सेंटर कितने है तो रेडियस कितने है। मैं इन्हू किहदे नाल कंपेयर करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो 2g की वैल्यू कितनी आई 4, 2f की वैल्यू कितनी आई 4, तो c की वैल्यू कितनी आई 1, यानी कि g की वैल्यू कितनी आ गई 2, f की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो c की वैल्यू कितनी आई 1। सो सेंटर कितने होएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी कि माइनस 2 कॉमा माइनस 2। तो रेडियस की आप हमने देखा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, सो 4 प्लस 4 माइनस 1 का अंडर रूट, यानी कि रूट 7 यूनिट्स, ठीक है। एक ही हो जाएगा अपना रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, ठीक है। बस ये जी ध्यान रखने वाली चीज़ है वो की है कि आप याद रखना कि एक्स स्क्वायर का तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट की होना चाहिए पॉजिटिव 1। फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन को लिखने का तरीका एक भी है प्लस 8x प्लस 8y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर तुहानूं पूछा जाए कि इसका सेंटर एंड रेडियस दसो तो तुसीं सब तो पहला ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट की होना चाहिए 1। तो आप लिखते हैं 2 कॉमन ले लेने पूरी इक्वेशन के विचों
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हुण आपां नूं पता चलिया कि तां सेम इक्वेशन लिखी हुई सी है ना, तो इहदा सेंटर कित्थे होएगा जिवें आपां हुणे कैलकुलेट कीता -2 एंड रेडियस विल बी √7 यूनिट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना आपां कि एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट की होना चाहिए +1, अगर नहीं है तो आपां उहनूं बनावांगे। ठीक है, सो अज आपां देखिया कि सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन की होंदी है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसका सेंटर कित्थे है h कॉमा के, तो इसका रेडियस कितना है r। सैकेंड इसे नूं ही लिखने का की तरीका अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन गिवन होएगी अपन तो सेंटर कित्थे होएगा -g कॉमा माइनस f एंड रेडियस कित्थे होएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ां तुसीं चंगी तरह याद करनियां। नैक्सट लैक्चर दे विच आपां देखांगे कि अगर आपां नूं ये दो चीज़ां इनडायरैक्टली गिवन होण तो हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। मतलब डायरैक्टली वो नहीं कहणगे तुहानूं कि सेंटर ये है तो रेडियस ये है, तुहानूं इनडायरैक्टली कुछ हिंट देणगे कि हाउ टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस एंड दैन आपां किवें इक्वेशन लिखनी है वो आपां नैक्सट लैक्चर्स दे विच देखांगे। थैंक यू।